Good morning, students. Today, our topic of discussion is Theories of Balanced and Unbalanced Growth, Part 2. I am Davinder Kaur, Assistant Professor in Economics at Government PG College, Sector 1, Panchkula, Haryana. So now we are going to discuss the second part of our lecture, Theories of Balanced and Unbalanced Growth. In our earlier lecture, we discussed what is balanced growth strategy. Now we are going to discuss unbalanced growth strategy. Economists like Richman, Rostow, Fleming, Singer have advocated the theory of unbalanced growth for economic development of underdeveloped countries. Mainly, unbalanced growth strategy is developed for the underdeveloped countries. Why? Because there is a paucity of resources. There is a absence of capital. So in the absence of capital or low capital, these economists suggest unbalanced growth strategy for the underdeveloped economies. So first of all, we have to know what is unbalanced growth. It means investment be made in some selected industries or sectors of the economy. अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कि सभी क्षेत्रों में नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज में ही निवेश किया जाता है, यानी कि कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में निवेश करके इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है. किस तरह का इम्बैलेंस? जैसे कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, shortage of power, different kinds of obstacles like rise in prices. तो इन imbalances को सॉल्व करते जाते हैं और इकोनॉमी जो है वो मूव ऑन करती जाती है ग्रोथ पाथ की तरफ. तो एक तरह से ये इम्बैलेंसेस जो है नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को पैदा करते हैं. So when investment is made in new opportunities, an imbalance will be created in yet other sector, giving rise to more investment opportunities. तो ये जो imbalances है ये continue प्रोसेस के साथ चलते जाते हैं और इकोनॉमी हमारी जो है ग्रोथ पाथ की तरफ बढ़ने लगती है. So in this way, economy will continue proceeding on the road of development. Now, unbalanced growth strategy में जो प्रोफेसर हरिशमैन है वो कहते हैं कि development is a chain disequilibria that must be kept alive rather than eliminate the disequilibria to which profits and losses are symptoms in a competitive economy. यानी कि हमने ये chain of इक्विलिब्रिया जो है इसको जिंदा रखना है, इसको अलाइव रखना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे. और कौन सी स्ट्रेटजी के साथ करे? अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी. यानी कि हमने अनबैलेंस क्रिएट करना है, इम्बैलेंस क्रिएट करना है, डिसइक्विलिब्रिया क्रिएट करना है. सो इफ इकोनॉमी इज टू कीप मूविंग अहेड, द टास्क ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी इज टू मेंटेन टेंशन, डिसप्रपोर्शंस एंड डिसइक्विलिब्रिया. So Professor Higgins कहते हैं deliberate unbalancing of the economy in accordance with the pre-designed strategy is the best way to achieve the economic growth. कहते अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अर्थव्यवस्था में अनबैलेंस क्रिएट करना एक प्री डिजाइन स्ट्रेटेजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत, जिससे कि आर्थिक विकास की गति को प्राप्त किया जा सके. That is unbalanced growth. Now we come to the explanation of the theory of unbalanced growth. हरिशमैन ने अपनी फेमस बुक स्ट्रेटजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में जिक्र किया. He is of the view that keeping alive imbalances in the economy is a definite manner in one of the best methods of the economic development.
वो कहता आर्थिक विकास का सबसे बढ़िया एक जो मेथड, एक जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि अर्थव्यवस्था में हम इम्बैलेंस क्रिएट करके रखें। तो सम जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं वो कहता है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली इंडस्ट्रीज में निवेश किया जाए, वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए टेंशंस क्रिएट करेंगी, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी, जिससे कि दूसरी इंडस्ट्रीज का विकास भी संभव है। वो एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि अगर हम एक ए इंडस्ट्री में हम निवेश करेंगे तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऐसी पैदा होंगी जो कि बी इंडस्ट्रीज के लिए भी पॉसिबिलिटीज जनरेट करेंगी। सिमिलरली जब बी इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो इंडस्ट्री सी के लिए पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी और इस तरह से इकोनॉमीज में जो है ग्रोथ होती जाएगी। सो he talked about technical complementarity. That means that जब A की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो B की मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाएगी और मांग बढ़ेगी। सिमिलरली तो वो कहता है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के साथ, टेक्निकल कॉम्प्लीमेंटैरिटीज के साथ क्या होगा कि दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी जो फर्म्स हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, उनकी मांग बढ़ जाएगी और जिससे कि डेवलपमेंट प्रोसेस तेजी से शुरू हो जाएगा। तो वो हरिशमैन कहते हैं कि निवेश को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला निवेश सोशल ओवरहेड कैपिटल। सो ये जो निवेश है किस पे है? सड़कों पे है, बिल्डिंग्स पे है, पावर, इरिगेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे जो हमारा निवेश है वो है सोशल ओवरहेड कैपिटल। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास सोशल ओवरहेड कैपिटल के निवेश के बिना संभव नहीं है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास में इसका होना बहुत ही जरूरी है। और कहते हैं कि अगर सोशल ओवरहेड कैपिटल में हम निवेश करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो हैं उनको एनकरेज करता है। तो ये डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्या है? इट इज द इन्वेस्टमेंट विच कॉजेज फाइनल प्रोडक्शन टू इंक्रीज, यानी कि ये वो निवेश है जिसकी वजह से कि जो फाइनल आउटपुट या प्रोडक्शन हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, तो ये सारा डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आता है। तो अभी तक हमने क्या जाना? एक निवेश जो सोशल ओवरहेड कैपिटल में किया जा सकता है, जैसे सड़कों का निर्माण, बिजली, तो इन सब में जो खर्चा है दैट इज सोशल ओवरहेड। और डायरेक्टली प्रोडक्टिव, डायरेक्टली इंडस्ट्रीज में, जैसे कि इंडस्ट्रीज में हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम ये टेंशंस कैसे क्रिएट करें, ये इम्बैलेंस कैसे क्रिएट करें। तो वो कहता है कि अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमीज हैं, कंट्रीज हैं, इनमें पहले ही पैसे की कमी पाई जाती है, कैपिटल की कमी पाई जाती है। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमारे पास कम होता है एज कंपेयर टू आवर इनकम। तो ड्यू टू दीज शॉर्टेजेस, जो रिसोर्सेज की शॉर्टेजेस है, या तो हम सोशल ओवरहेड कैपिटल पर निवेश करें या हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में निवेश करें। तो दो तरह से हम ये टेंशंस क्रिएट कर सकते हैं, या तो डेवलपमेंट बाय एक्सेस कैपेसिटी ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट और अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद सोशल ओवरहेड कॉस्ट, या दूसरा तरीका क्या है? डेवलपमेंट बाय सोशल ओवरहेड कॉस्ट और अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी बाय डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो पहले एक्सेस कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, जो कि हम सोशल ओवरहेड कॉस्ट के द्वारा जनरेट करेंगे। वो कहते हैं कि अगर हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करेंगे तो क्या होगा? एक्सटर्नल इकोनॉमीज होंगी, हमें फायदे मिलेंगे, बेटर रोड्स होंगी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो हमारी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज होगी, जिससे कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है उनको बहुत ही फायदा होने वाला है। हमें चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, अच्छी इरिगेशन सुविधाएं हमें मिलेंगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे कि रिजल्टेंटली डायरेक्ट डीपीए जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं हमारी, उनका विकास होगा।
तो सोशल ओवरहेड कॉस्ट में अगर हम पहले निवेश करेंगे तो दैट विल लीड टू अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. नाउ नेक्स्ट है डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट. तो इसमें हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कॉस्ट इज एडवोकेटेड नॉट बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्ट इफेक्ट on the final output, but because it permits directly productive activity to come and reap the benefits generated by social overhead cost. कहता हमने अगर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हमारे फाइनल आउटपुट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं. नो, कहता कि हम डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को परमिट कर रहे हैं कि वो इन बेनिफिट्स को रीप कर सकें. नाउ अब है अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम सीधा का सीधा डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में जब निवेश करेंगे, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, हमारे पास पावर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो देयर विल बी अ पॉलिटिकल प्रेशर and investment will have to made in social overhead capital. Such a process is called development via shortages of social overhead cost. क्योंकि हमने डायरेक्टली निवेश डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कर दिया, लेकिन सोशल ओवरहेड तो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो देयर विल बी अ प्रेशर. तो अगर हम डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पहले निवेश करते हैं तो प्रेशर की वजह से सोशल ओवरहेड कॉस्ट की जो डेवलपमेंट है possible hai. So according to Hirschman, process of initial investment in social overhead cost is constant and without any hindrance. It is self-propelling. On the contrary, process of initial investment in directly productive activity may cause hindrance because it faces shortages in social overhead cost. So now we come to the path of development.